Hello, my dear students. So you might be wondering, ये ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए. That we are going through the lockdown. So, dear students, ask yourself what I did during the last few months. Did I do anything new? Did I do anything constructive? Any constructive work did I do? So definitely some of you will say yes, I learned many things, and many of you will say no, I simply wasted my time. So as we are going through a very tough time, the situation is not very normal throughout the world. So students all over the world, what are they doing? I was simply sitting and I was without any work, so I did my classes and all, and thought to talk to you all. That is why I'm making this short video to tell you what should be done in order to pass time during the lockdown. We should not waste our time. So the last question you can see here, did I do any constructive work? This is the question you have to ask yourself. These are the three questions. If you ask yourself what I did during the last few months, those few months, what did I do? क्या पाया, क्या खोया, क्या सीखा मैंने? Isn't it? The next one, did I do anything new? क्या मैंने नया कुछ सीखा? Then third one, did I do any constructive work? क्या मैंने कुछ ऐसा काम किया जिससे मुझे गर्व हो, कुछ सीखने को मिला? So definitely अगर yes, then that is very good for you all, well and good. Then many of the students definitely will say no, I did not do anything. I woke up late, then I had my breakfast, then I played games on the mobile phone. Right, so mostly nowadays throughout the world children are addicted to mobile phones and all only for playing games. I know it's a very tough time, you are not in school, your time is not passing smoothly, but what to do? We can do something good which can help us to learn, which can be very very fruitful for us. We can do some constructive work. So I'm going to tell you, dear students, what to do during this lockdown. We are still in the midst of the lockdown. When this lockdown will be over, we don't know. When the schools are going to reopen, that also we don't know, my dear. So let us do something constructive. कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम कुछ सीख पाए, है ना? When जब ये लॉकडाउन पूरा खत्म हो जाएगा, जब हम वापस देखेंगे, तो उस समय हम अपने आप से पूछेंगे, मैंने इन लॉकडाउन के दौरान क्या सीखा? मैंने अपना टाइम सिंपली वेस्ट किया? सो डेफिनेटली वो आंसर हमें अभी से रेडी रखना है. मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने सीखा. सो इफ यू डोंट नो, इफ यू आर नॉट, इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉपर आइडिया व्हाट टू डू, what not to do, right? That definitely I'm going to tell you I'm going to give you some of the tips which will help you to improve your lot, and you will there will be an interest in you. Interest will be generated within you. For the beginning it will be very very tough for you, but once you get into it you will definitely enjoy it. Okay, so let's start one by one. So सबसे पहले मैं सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि reading is very very important. You all have books at home, new books are there, old books are also there. So पढ़ने के लिए क्या नया क्या पुराना, पढ़ने से मतलब है ना? So सबसे पहले reading. What we have to do? We can improve our reading. Whatever material we get, books are there at home, history book is there, geography book is there, English books are there, right? And many different subject books are, physics, chemistry, geography books are there. So what we can do? We can read it. So definitely those who are not habituated in reading, definitely in the first instance they'll find difficulty, but आस्ते आस्ते जब उनका आदत बनते जाएगा तो उनको पढ़ने की इच्छा और बढ़ती जाएगी. सबसे पहले हमें क्या करना है? रीडिंग. सुबह उठेंगे, कोई भी बुक्स ले लेंगे, एक पैराग्राफ आज पढ़ेंगे, कल 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे, 3 पैराग्राफ पढ़ेंगे. पढ़ते पढ़ते क्या होगा? हमारा जो पढ़ने की शक्ति, जो इच्छा शक्ति अंदर से जो जागेगी, वो धीरे धीरे जागेगी. सो व्हाट विल हैपन व्हेन वी इंप्रूव आवर रीडिंग? नंबर 1, हमारा लंग्स मजबूत होगा. जब भी आप पढ़ो तो आवाज निकाल करके पढ़िए, राइट? रीड लाउडली. ओके, गो टू द टेरेस, गो टू द रूम, राइट? गो समवेयर अलोन in the same apartment or in the same building somewhere, right? And read loudly. आवाज निकाल करके पढ़िए. So इससे हमें फायदा क्या होगा? Number 1, our reading will improve. Okay. Number 2, our fluency will improve. Okay. Number 3, we'll come across different words, and that words will be added in our vocabulary. हमारा शब्दकोश बढ़ेगा.
राइट, दैट मीन्स आवर वोकैबुलरी विल गो ऑन इंक्रीजिंग, अलग अलग नए नए वर्ड्स हम सीखेंगे. सो व्हेन वी कम अक्रॉस दिस डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स, तो डेफिनेटली इनके मीनिंग हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डेफिनेटली हम अपने बड़ों से पूछेंगे या फिर डिक्शनरी से हम कंसल्ट करेंगे, उन वर्ड्स के मीनिंग हम जानेंगे. सो बहुत कुछ है हमारे पास करने के लिए. सो नंबर 1, रीडिंग. रीडिंग विल इंप्रूव आवर लिसनिंग पावर, रीडिंग विल इंप्रूव आवर राइटिंग पावर. ओके, राइटिंग हमारा इंप्रूव होगा. ओके, वी कैन राइट गुड एसेज ऑल्सो, वी कैन राइट लेटर्स. लेटर्स तो अब कोई लिखता नहीं है ना, ऐसे कोई लिखता नहीं है, लेकिन अगर हम सीखे लिखना तो हमारे लिए ही फायदा है. आज भी न्यूज़पेपर बिकती है, ऑल ओवर इंडिया न्यूज़पेपर का चलन है. लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, घर में टीवी है फिर भी वो न्यूज़पेपर लाते हैं और पढ़ते हैं, उनका शौक है, उनकी आदत लगी हुई है. सो ऐसे अच्छी आदतें हमें भी अपने जीवन में अपनानी चाहिए. Isn't it, children? So I'm speaking in Hindi as well as in English so that there should not be any discomfort for understanding what I'm trying to tell you all. Okay, reading हो गया, नए नए वर्ड्स हम लर्न करेंगे. चलो एक डायरी बना लेते हैं, एक छोटी सी कॉपी ले लेते हैं. नए दिन में अगर हम 5 वर्ड्स भी नए निकाल करके उसके मीनिंग याद करेंगे ना, सो डेफिनेटली थ्रू आउट आवर लाइफ ये हमें हेल्प करेगी. नए नए वर्ड्स से हम अपने आप को परिचय कर पाएंगे. वो नए वर्ड्स हमारे ज़िंदगी में हमेशा के लिए रह जाएंगे. जब हम कभी कहीं पर किसी से बातें करेंगे तो डेफिनेटली उस वर्ड्स को हम यूज़ कर पाएंगे इन सेंटेंसेस. आप हिंदी टेक्स्ट बुक भी पढ़ सकते हैं, आपकी हिंदी इंप्रूव कर सकते हैं, हिंदी के नए नए वर्ड्स सीख सकते हैं. इंग्लिश बुक्स है, इंग्लिश वर्ड्स यू कैन लर्न. सो वोकैबुलरी डेफिनेटली करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम करते नहीं हैं, है ना. सो दूसरी बात क्या करें, रीडिंग तो हो गई है ना, चलो प्रैक्टिस करते हैं मैथमेटिक्स की. ठीक है ना. अभी मैं क्लास 9 में हूँ, क्लास 8 का बुक्स पढ़ा हुआ है, वहाँ से कुछ सम्स निकाल के प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूलाज वगैरह हम लर्न करेंगे. वी कैन लर्न फॉर्मूलाज, वी कैन लर्न बाय हार्ट, है ना. छोटे बच्चों के लिए क्लास 1 से लेके 5 तक 6 तक के लिए बच्चे क्या कर सकते हैं, टेबल को लर्न कर सकते हैं. जितने टेबल वो याद कर पाएंगे उतना ही उनके लिए अच्छा है ना. नए नए सम्स को प्रैक्टिस कर पाएंगे. अभी जो ऑनलाइन क्लासेस ऑल ओवर इंडिया हो रही है, बच्चे उससे भी सीख पाएंगे. ये नहीं कि टीचर ने मटेरियल भेज दिया बंद कर दिया, ऐसा नहीं है. आप उससे सीखिए, ये आपके लिए है, आपको सीखना है. तो अभी हमारा समय क्या है, सीखने का समय. हम बूढ़े तो हुए नहीं है, आज भी मैं कुछ ना कुछ नया सीखता ही रहता हूं, है ना. सो यू कैन लर्न टेबल्स, यू कैन प्रैक्टिस मैथमेटिक्स, है ना. नए नए सम्स को प्रैक्टिस कीजिए. आपके पास नए बुक्स है, उस बुक से प्रैक्टिस कीजिए. अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है मैथ समझने में, अपने टीचर्स से कंसल्ट कीजिए, उन्हें मैसेज कीजिए, क्वेश्चंस लिख के भेजिए, वो डेफिनेटली आपको आंसर्स देंगे. हम तो बने ही हैं आपके लिए, है ना. बच्चों के बिना टीचर अधूरा है और टीचर के बिना बच्चे अधूरे हैं. तो व्हाई डोंट वी वर्क स्मूथली, एक दूसरे की मदद करेंगे. मैं जब आपको कुछ बताऊंगा तो मैं भी सीखूंगा, आपसे भी मैं कुछ सीख पाऊंगा, मुझसे भी आप सीखेंगे, है ना बच्चों. सो डेफिनेटली माय डियर चिल्ड्रन, चलो टेबल लर्निंग हो गई, फॉर्मूला याद हो गया हमें, है ना. उसके बाद चलो बड़े बच्चे को लेते हैं. बड़े बच्चे व्हाट दे थिंक इज दैट व्हाट टू डू, वी डोंट हैव टाइम, राइट, वी हैव लॉट्स ऑफ वर्क. सो व्हाट वर्क राइट नाउ, आई डोंट थिंक दे हैव एनी वर्क. दोज आर वेरी वेरी एम्बिशियस, दे आर continuously studying, they have made a timetable and according to a timetable they are working on their subjects, है ना. many few are there, they are not at all bothered about their future, they are not bothered about their future, they are not ambitious and all. so definitely कल पछताने से अच्छा है कि आज हम जाने मुझे कल क्या करना है. हमें कल के बारे में सोचना है. आज तो हम जी ही रहे हैं खुशी से, लेकिन कल क्या करना है मुझे, वो भी मुझे आज ही रेडी करके रखना है. तो कल की तैयारी हम आज से शुरू करें. आज से क्यों, अभी से शुरू करते हैं, है कि नहीं. सो बड़े बच्चे, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द रीडिंग्स एंड ऑल, रीड बुक्स, रीड पेजेस, 5-6 पेजेस एवरी डे. इफ यू रीड दैट विल इंक्रीज योर एपेटाइट फॉर रीडिंग बुक्स. मुझे और रीड करना है, मुझे और पढ़ना है. तो इससे क्या होगा, आपके इंप्रूवमेंट आएंगी रीडिंग में. सो वंस यू बिकम गुड इन रीडिंग, you can write good letters, you can write long essays and all, right. You can then generate a curiosity to read different books. Apart from subject books, you can read story books, articles are there, है ना. ऑनलाइन आप जा करके नए नए स्टोरी बुक्स वगैरह आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं. चलो वो नहीं है तो किंडल बुक है, वहाँ से भी आप नए नए बुक्स पढ़ सकते हैं, isn't it. Then
मोर ओवर आपके एरिया में कहीं लाइब्रेरी है तो वहाँ के मेंबरशिप आप ले लीजिए, वहाँ से बुक्स पढ़िए। आप इंटरनेट चलाते हैं, मोबाइल सबके हाथों में है ना, आप ऑफ टाइम में, फ्री पीरियड में गेम्स के बजाय आप कुछ ऐसा चीज़ निकालिए वहाँ से जिससे आप पढ़ें, है ना, कुछ सीख पाए। सो ये सब कंस्ट्रक्टिव वर्क है। दिस आर सम ऑफ द कंस्ट्रक्टिव वर्क विच वी शुड डू इन आवर लाइफ, है ना। चलिए, रीडिंग हो गया, प्रैक्टिस मैथमेटिक्स हो गया, टेबल लर्निंग हो गया छोटे बच्चों के लिए, है ना। चलिए, छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, सबके लिए और एक है टाइम पास, क्या है, हम आर्ट कर सकते हैं, पेंटिंग सीख सकते हैं, है ना, ड्राइंग कर सकते हैं। हमें अपना टाइम पास करना है, तो अगर जिस चीज को हम लेकर के टाइम पास कर रहे हैं वो सिंपली व्यर्थ हो जाए, इट इज सिंपली वेस्टेड, देन व्हाट इज द यूज। ऐसा कुछ करें जिससे हमारा मनोरंजन भी हो, हमारा टाइम पास भी हो, एंड वी कैन लर्न मेनी थिंग आउट ऑफ दैट। We can learn many things out of that. That is why I wrote this question. ये तीन जो क्वेश्चन है आपके लिए, आपको अपने आप से पूछना है, मैंने क्या किया इन जो लॉकडाउन के जो ये 4-5 महीने बीते हैं, हमने उसमें क्या किया। सिंपली सोवा, ओके, सूत करके उठा, है ना, सो करके उठने के बाद मैंने क्या किया, टीचर्स ने आपको ऑनलाइन मटेरियल्स भेजे, किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा। आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इवन टुडे दे हैव नॉट मेड द कॉपीज, दे सिंपली टेक एक्सक्यूज, शॉप्स आर क्लोज। अरे शॉप्स आर ओपन, अरे इंटरेस्ट होने से जहां चाह वहां रहा। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप चाहते हैं अपना सारा काम सही सही रखना, तो आप कॉपी लेकर के सारा चैप्टर वाइज आप कॉपी कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। एक्सक्यूजेस से जिंदगी नहीं चलती है, तो आपको वो सारा काम करना है ना। ये वीडियो सारे बच्चों के लिए, छोटे से लेकर बड़े के लिए। आप अगर सुनेंगे, आप इनको लगेगा कि ये सर बकवास कर रहा है, तो बकवास ही सही। अगर इससे आपको कुछ फायदा होता है तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सफल हुआ, है ना। इसमें से बहुत सारे बच्चे मुझे पसंद करेंगे, कोई नहीं करेंगे, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेरे इन बातों को अमल कर ले, फॉलो कर ले और उससे कुछ सीख ले, दैट विल बी माई अचीवमेंट। तो चलिए, मैं बैठा हुआ था, आया, वीडियो बनाया, तो मुझे भी कुछ पता चला कि हाँ मैं भी कुछ करूं। तो डेफिनेटली मैं कल से क्या करने वाला हूं, मैं डेफिनेटली बुक्स रीडिंग करूंगा। अपने सब्जेक्ट की बुक्स तो मैं रीड करता ही हूँ, डेली 2 घंटा पढ़ता ही हूँ सब्जेक्ट प्रिपरेशन के लिए, और भी सब्जेक्ट के बुक्स में पढ़ूंगा, है ना। सो उससे क्या होगा, मुझे इंटरेस्ट रहेगा, मेरा टाइम भी उसमें कटता रहेगा, है ना। अगर मैं खाली बैठूंगा, इफ यू ऑल स्टे आइडल, दैट देयर इज अ वेरी पॉपुलर सेइंग, आइडल माइंड इज अ डेविल माइंड। खाली घर शैतान का घर होता है, ये तो सभी जानते हैं, है ना। सो आपको फिर से लास्ट में मैं बताता हूं, डियर स्टूडेंट्स, आप अपने आप से पूछो, व्हाट आई डिड ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ्स, जो पिछले 5 महीने में मैंने क्या खोया, दैट मीन्स क्या पाया। डिड आई डू एनीथिंग न्यू, क्या मैंने नया कुछ सीखा। एंड द लास्ट वन, डिड आई डू एनीथिंग कंस्ट्रक्टिव, क्या मैंने कुछ ऐसा चीज किया जिससे हमें आगे, मुझे अपनी जिंदगी में फायदा होगा, है ना। तो आप अगर इस लॉकडाउन को सोचेंगे कि ना स्कूल खुलेगा तभी मैं पढ़ूंगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। 5 महीने आपने वेस्ट कर दिए, आने वाले 5 महीने आपको वेस्ट नहीं करने हैं, आपको सीखना है, पढ़ना है ना। सपोज अगर स्कूल खुलती है, इफ द स्कूल रीओपन्स, उस समय आप क्या करेंगे, शुरू से पढ़ेंगे। क्या आपको मालूम है कि आप बहुत सारे बच्चे पेंसिल पकड़ना भूल गए होंगे, है ना। उनको पेंसिल पकड़ना जारी रखना है। टेबल्स भूल चुका है, टेबल्स याद रखना है उनको। फॉर्मूलाज भूल चुका है, फॉर्मूला याद रखना है। रीडिंग करिए, रीडिंग कीजिए, रीडिंग डेफिनेटली, मैं तो सिर्फ यही बोलूंगा, रीडिंग विल इंप्रूव एवरीथिंग। रीडिंग विल इंप्रूव योर राइटिंग, रीडिंग विल इंप्रूव योर स्पीकिंग, रीडिंग विल इंप्रूव योर लाइफ, है ना। तो होप आप लोग इस बातों को मानेंगे, और आज से नहीं, अभी से ही आप इसको फॉलो करेंगे ना। तो डेफिनेटली आपको करना भी चाहिए, और हो सके तो अपने माता पिता को भी ये वीडियो दिखाइए और उनको बोलिए कि आपको गाइड करे क्या करना है। और किसी भी तरह का हेल्प किसी टीचर से चाहिए, आप किसी भी स्कूल के बच्चे हो, आप अपने टीचर से कंसल्ट कीजिए, अपने प्रॉब्लम्स को, डाउट्स को क्लियर कीजिए। ऐसे ही मत रहिए, जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा। द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी मस्ट बी डेवलप्ड अमॉन्ग योरसेल्फ। जब आप पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, मे आई नो योर गुड नेम, देन डेफिनेटली यू विल नो द नेम, है ना। वेयर वाई डज द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये क्वेश्चन मेरा है, तो डेफिनेटली मुझे आंसर भी मिलेगा। जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे आपको जवाब नहीं मिलेगा, कोई आकर आपको जवाब देने वाला नहीं है। सो यू मस्ट डेवलप द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी अमॉन्ग योर सेल्फ। सो होप
you all have understood what I tried to mean by this small video. It is not a class, it is not related to any subject, it is just to motivate you to do some constructive work in the coming days. So when the school reopens or when everything becomes normal, when you turn back, then you can recollect what I did in this last few months. क्या सीखा मैंने, क्या पाया मैंने क्या खोया. सो डिड आई डू एनीथिंग न्यू, और क्या सिंपली मैंने अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर दिया जानवरों की तरह? नहीं. सो मोस्ट प्रोबेबली माय डियर, बहुतों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत लोग अभी भी सीख रहे हैं, और जो नहीं सीख रहे हैं तो अभी से ही आप उठ जाइए, खड़े हो जाइए और लग जाइए. ड्राइंग कीजिए, पेंटिंग कीजिए, आर्ट कीजिए, टेबल भूल गए हो तो टेबल याद कीजिए, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस कीजिए. कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है तो बुक्स निकाल के रीडिंग कीजिए. मन में नहीं पढ़ना, जोर जोर से पढ़िए, और डेफिनेटली उससे क्या होगा, लंग्स भी इंप्रूव, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ जाएगा. So hope you all have understood, and the main motive of this video definitely will become successful. Please watch it and enjoy your pastime or enjoy your reading. You can enjoy. ओके, सो डेफिनेटली फिर हम मिलेंगे किसी और मुद्दे को लेकर, फिर नए टॉपिक के साथ फिर हम आप बच्चों के पास आएंगे. और इस बीच में आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे तो आप डेफिनेटली इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. ठीक है. सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, विल मीट अगेन नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय.